السلام علیکم. محمد احمد حاضر خدمت ہے. 18 ستمبر 2023 یعنی سوموار کے دن جاپان میں ایک دن منایا گیا اور اس دن کا نام ہے رسپیکٹ فار دا ایجڈ پیپل. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، رسپیکٹ فار دا ایجڈ پیپل یعنی بوڑھے لوگوں کے لیے عزت اور احترام کا دن. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ باقی دنوں میں ان کی عزت اور احترام نہیں ہوتی، لیکن یہ دن بالخصوص منایا جاتا ہے اس اظہار کے لیے کہ ہم اپنے بوڑھوں کا کتنا احترام کرتے ہیں، اپنے بوڑھوں کو کتنی عزت دیتے ہیں. مختلف طریقوں سے یہ دن منایا جاتا ہے اور مختلف ٹی وی پروگرامز کیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ کھانے کھائے جاتے ہیں، ان کو کھانے بھیجے جاتے ہیں. یہ ایک طریقہ ہے ان کا اس دن کو منانے کا. یہ روایت خواتین و حضرات 1966 میں شروع ہوئی، 1966. اس زمانے میں حکومت نے وہ لوگ جو 100 سال کے ہو جاتے تھے انہیں سینٹینیرین گفٹ یعنی ان کے 100 سال ہونے پر ایک گفٹ دیا جاتا تھا جسے سلور سیک کپ کہا جاتا ہے. سلور سیک کپ. اور سیک کیا ہے؟ سیک ایک الکوہلک ڈرنک ہے جس میں وہ پیتے تھے. ان کا بہرحال یہی طریقہ تھا. اس ایک کپ کی قیمت اس زمانے میں تقریباً 8000 ین ہوتی تھی، 8000 ین. بعد میں خیر حکومت نے اس کو بدلا، اس کا مٹیریل چینج کیا، کیونکہ ایک تو بوڑھوں کی تعداد بڑھنے لگی اور ایک گورنمنٹ کا بہت سارا پیسہ اس سلسلے میں صرف ہو جاتا تھا. جاپان میں چونکہ آبادی کا شرح نمو بہت کم ہے، کہا جاتا ہے کہ تقریباً -0.53. یہ جاپان کا بہت بڑا ایشو ہے جس کی وجہ سے جاپان میں بوڑھوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. جوان کم ہو رہے ہیں، بوڑھے زیادہ ہو رہے ہیں. ایک اندازے کیونکہ لوگ شادیاں ہی نہیں کرتے. پیپل ڈو ناٹ وانٹ ٹو میری. وہ کہتے ہیں جی بہت سی ذمہ داریاں ہم نہیں اٹھا سکتے. اب آپ پاپولیشن گروتھ کی ایک میں چھوٹی سی جھلک دکھاتا ہوں آپ کو کہ 1980 کے دہائی میں 42% وہ لوگ تھے شادی شدہ لوگ جن کے ہاں صرف ایک بچہ تھا، ایک بچہ. اور اسی طرح اس دور میں 20% سنگل لوگ رہتے تھے جو کہ شادی ہی نہیں کرتے تھے، 20%. یہ معاملہ آگے چلا اور جب ہم 2020 میں پہنچتے ہیں تو پھر کیا ہوا کہ ایک بچے والے جو میاں بیوی تھے ان کی تعداد 25% ہو گئی، یعنی تعداد کم ہو گئی. اور یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے شادیاں کرنا بند کر دی. اور جو سنگل تھے ان لوگوں کی پرسنٹیج تقریباً 38 ہو گئی، یعنی 38% وہ لوگ تھے جو سنگل رہ رہے تھے. یہ ایک رجحان بتاتا ہے ان کے بارے میں، ان کی پاپولیشن یا ڈیموگرافی کے بارے میں ایک رجحان ہمیں پتہ لگتا ہے. اسی طرح پچھلے سال ایک سروے کیا گیا. اس سروے کے مطابق دیکھا یہ گیا کہ 17% جاپانی مردوں نے اور 15% جاپانی عورتوں نے جن کی عمر 18 سال سے لے کر 34 سال تک تھی انہوں نے شادی سے انکار کر دیا. They do not accept marriages or wedding. ان کے نزدیک بہت سی وجوہات ہیں اور اس میں اہم ترین وجہ مہنگائی، انفلیشن. The living cost has increased tremendously. There is an increase in it. Housing issue.
आपको पता है घरों का मामला, बहुत ज़्यादा महंगे मामले। तो इन वजूहात से और ज़िम्मेदारियों से भागना कि हम ज़िम्मेदारियां कबूल नहीं कर सकते, इसलिए ये मामला हुआ। और जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये है कि आबादी बढ़ ही नहीं रही। और यहाँ तक देखें आप कि 10% लोग जापान में ऐसे हैं जो 80 साल उम्र अबूर कर चुके हैं। 80 साल उम्र। जापान की कुल आबादी इस वक्त 124.4 मिलियन, 124.4 मिलियन, और इसमें तकरीबन 12.59 million are those people who are above 80 years age, above 80 years of age, or 12 million are those people who are 75, more than 75. तो ये बहरहाल एक पॉपुलेशन श्रिंक बहुत ज़्यादा है। एंड इन दिस बिकॉज ऑफ दैट आपको ये भी मैं अर्ज करता चलूँ कि जापान इज़ हेविली डिपेंडेंट। जापान बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है अपनी एल्डरली वर्क फोर्स पर। आई से वंस अगेन, एल्डरली वर्क फोर्स। तकरीबन 9 मिलियन एल्डरली पीपल, 9 मिलियन एल्डरली पीपल आर वर्किंग। 9 मिलियन बहुत बड़ी तादाद है। एल्डरली पीपल आर वर्किंग, चाहे वो मर्द हों या ख़वातीन। और ये तकरीबन 13.6% बनती है, यानी हर 13.6% वो लोग हैं जो एल्डरली पीपल हैं और जो काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन एक बात आप देखें कि ये पॉपुलेशन श्रिंक कितना ख़तरनाक है कि वहाँ पर बच्चे पैदा ही नहीं होते, और फिर जब बच्चे पैदा नहीं होंगे तो ये आप गौर से देखें तो एक गैप पैदा हो जाता है इन बिटवीन पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन एंड एल्डरली पॉपुलेशन। ज़्यादा लोग बूढ़े हो रहे हैं, और जो बूढ़ी या एल्डरली पॉपुलेशन होती है दैट इज़ नोन एज डिपेंडेंट पॉपुलेशन। एक और सर्वे के मुताबिक कहा गया कि वो आबादी, वो लोग या वो आबादी जिनकी उम्र 65 साल से लेकर 74 साल तक है, वो अर्ली एल्डरली कहलाते हैं। 65 to 74 year of age. On the other hand, more than 75 year, they are called late elderly people. ये जापान की कैफियत है, जहाँ पर फैक्ट्रीज दिन रात चल रही हैं और जहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूज इकोनॉमिक बूम है। जापानी लोग, वहाँ हुकूमत ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हुए हैं कि बूढ़े लोगों को किस तरह यूटिलाइज़ किया जाए उनकी सेहत और उनकी हैसियत और ताकत के मुताबिक। तो इस सिलसिले में कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो जापानी हुकूमत ने उनके ज़िम्मे लगाई हुई हैं। हर एक बूढ़े शख्स पर एक ज़िम्मेदारी है, अगर उसकी सेहत इजाज़त दे, कि वो रोज़ाना सुबह तकरीबन 1.9 माइल्स वॉक करता है, खातून हो या मर्द। 1.9 माइल प्री डॉन वॉक इसे कहा जाता है, एवरी डे, फॉर एवरी डे। एक कंपनी है जिसका नाम है कोशिदाका होल्डिंग कंपनी, उन्होंने अपने क्लब बनाए हुए हैं जिनको हेल्थ क्लब कहा जाता है फॉर द सीनियर सिटीजन्स। वहाँ पर वो जाते हैं, सीनियर लोग, बूढ़े लोग, और मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं जो सेहत के लिए मुफीद साबित होती हैं। नंबर 3 एक और एक्टिविटी है चैट्स। वो बैठकर गुफ्तगू करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, दूसरे लोगों को दोस्त बनाते हैं ताकि वो अपने जो जहनी कैफियत हैं उसको नॉर्मल रख सकें या कम से कम एबनॉर्मल ना हों।
जिस तरह दोस्तों के साथ बैठकर गुफ्तगू की जाती है, ये भी उनका एक शुगल है। फिर एक और कार्निवल है, दैट इज़ नोन एज अ कार्निवल। और ये कार्निवल क्या है? ये ऐसा है कि लोग वहाँ पर इंजॉय करते हैं। फॉर द सीनियर सिटीजन्स, इंजॉयमेंट के लिए बनाया जाता है कि लोग आएँ और इंजॉय करें। और फिर वो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स खेलते हैं। उस कार्निवल में मुख्तलिफ स्पोर्ट्स खेली जाती हैं उनकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए। और तीसरा ये है, देखें, उन्होंने बहुत से कॉम्प्लेक्स ऐसे बनाए हुए हैं कि वो ये काम, उसमें लिटर उठाना, लिटर, आई होप यू नो व्हाट इज़ लिटर, जो कूड़ा करकट है, वो उठाने के लिए उनकी ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं कि वो उठाएं। और इसके लिए उन्हें पैसे भी दिए जाते हैं। वो मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं ताकि वहाँ पर मुख्तलिफ़ काम कर सकें। लॉसन नामी एक, लॉसन इनकॉर्पोरेशन एक स्टोर चेन है। उन्होंने अपने हर स्टोर में बूढ़े लोगों के लिए ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए और उनकी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए मशीनें लगाई हुई हैं कि जब भी वो आएँ उनका बीपी चेक किया जाए और उनको मुख्तलिफ हेल्थ जितने भी बेहतर करने के लिए कैफियत हैं उन पर उनको लाया जाए या उनको वहाँ पर उसके अंडर किया जाए। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के उनकी, यूँ कह लें कि एक्टिविटीज़ हैं जो बूढ़ों के लिए मुख्तस की गई हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुरी बात, बहरहाल मैं बुरी तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा गिर जाए तो फिर मुल्कों को सफ़र करना ही पड़ता है, द वे जापान इज़ सफरिंग। थैंक यू वेरी मच ख़वातीन और हज़रात।